Assalamu alaikum dear students. We are proceeding with the chapter further on with the chemical reactions. Now dear student, before we start with the chemical reactions, it is important to note down the certain things that how the carbon is allowing the incoming group to adjust on itself. So for that we need to see that how does it go for acquiring the positive charge. So dear student, first of all, nucleophilic addition reaction. Our particular aldehydes and ketones are able to give us the nucleophilic addition reaction. So how it is possible? Let us see first of all, aldehyde. In aldehyde, the carbonyl group is present, in which we can say that carbonyl group which is having the double bond, from that one bond is breaking, which is shown very clearly in the particular slide over here, that the double bond is shifting towards the oxygen. So because of it, the oxygen will be acquiring negative charge and the carbon will be acquiring positive charge. Now dear student, I have clearly shown you on both the sides that one is aldehyde and one is ketone, and in between we are having HCN. So hydrogen is positive and CN is negative. Now what is going to happen? The negative part will be going to the oxygen which is having the minus charge, and the positive part of HCN will go to the carbon which is having positive charge. So dear student, what happens over here? Nucleophile. आपका nucleophile क्या है? CN, because CN is negatively charged. So nucleophile is attacking on the carbon, that is carbocation of your carbonyl group perpendicular to the plane. अब carbon कैसा हो जाएगा? sp2 से sp3 hybridized हो जाएगा dear student, and addition of nucleophile and hydrogen on the carbon and oxygen takes place. Now what about the reactivity? The reactivity of your aldehydes are more than ketones sterically and electronically. इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर देखा जाए तो चार्जेस के हिसाब से, और स्टेरिकली मतलब कि उसके साथ कार्बोनिल के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से. तो कार्बोनिल जो ग्रुप है एल्डिहाइड का, उसके पास एक हाइड्रोजन है और एक आर है, ठीक है, जबकि कीटोन के पास क्या है? दोनों साइड पे आर लगे हुए हैं. तो कीटोन इज हैविंग बल्की ग्रुप्स वेर इन द aldehydes आर हैविंग one hydrogen, and that is why they can allow the incoming group freely. That is the reason we can say that aldehydes are more reactive than कीटोन. अगर कोई आपसे पूछता है कि aldehyde कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन को इजीली निकालना भी पॉसिबल है, और हाइड्रोजन छोटा सा है तो वो आने वाले ग्रुप को उतना रोकेगा भी नहीं, रोक नहीं पाएगा. जबकि कीटोन के दोनों साइड पे क्या है? आर लगा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी द ऑब्स्टिकल ऑन द वे ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. So this is what we have to remember when we talk about the reactivity of aldehydes and ketones. Now dear student, we are going to see with the reactions now. So number one, addition of hydrogen cyanide. Now clearly seen, I told you very clearly that आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो क्या होगा यहाँ पर? आपका जो CN है वो लगेगा सीधा आपके कार्बन के साथ, और आपका जो H जो है वो हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा. सो यहाँ पे जो बना उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन. वी कॉल इट एज ए साइनोहाइड्रीन. सेकंड, एडिशन ऑफ sodium hydrogen sulfide, that is NaHSO3. Now dear student, Na is always positive, तो बाकी का ग्रुप क्या, बाकी का जो पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. दैट इज योर HSO3. सो यू आर एबल टू सी दैट इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ओवर हियर इन बिटवीन, वेर इन यू हैव ONA एंड SO3H. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है. SO3H का प्रोटॉन जो है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की जगह पे चला जाएगा, और सोडियम जो है वो SO3 के साथ चला जाता है. दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड. This is called your bisulfide addition compound. So dear student, when you do such a kind of the reactions, what you need to remember, which is your positive portion and which is your नेगेटिव पोर्शन. जो पॉजिटिव पोर्शन है मतलब कि जो भी पार्ट होगा वो सोडियम ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और जो नेगेटिव है वो सीधा कार्बन के साथ लगेगा, क्योंकि कार्बन कार्बोकेटायन के फॉर्मेट में आ जाता है जब कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होगा. बट डियर स्टूडेंट, लेट मी फर्स्ट नो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. If you remember, Grignard reagent is very important material, and that is RMgX. That is what you have to remember, RMgX. Now
व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. नाउ डियर स्टूडेंट, RMgX को जब हम क्लीव करते हैं तो आपका जो R है वो सेपरेट हो गया और MgX जो है वो सेपरेट हो गया. अच्छा, R पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर वो मैग्नीशियम के साथ है तो कॉमनली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, Mg मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो कार्बन आपका जो R है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, वो सीधा लगेगा कार्बन के साथ, और आपका MgX जो है वो ऑक्सीजन के साथ लगेगा. सो डियर स्टूडेंट, यू आर गेटिंग द एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नंबर 4 रिएक्शन, एडिशन ऑफ द अल्कोहल. अल्कोहल्स का यहाँ पे हमने एडिशन बताया है किसके साथ, कीटोन के साथ. व्हाट इज द कीटोन गिवन ओवर हियर, एसीटोन. एसीटोन इज रिएक्टिंग विद मिथेनॉल. सो डियर स्टूडेंट, मिथेनॉल के नीचे मैंने लिखा हुआ है ROH. मैंने अच्छे से क्लीवेज दिखा दिया हुआ है दैट H इज H प्लस एंड RO माइनस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड हाइड्रोजन सीधा लग गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और आपका OCH3 नीचे लग गया कार्बन के साथ. डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल. एक और बार मिथेनॉल ग्रुप को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो पहला हेमीएसिटल बना है उसका OH का H आपके नेक्स्ट वाले आने वाले नए मिथेनॉल के OH के साथ क्या करेगा, मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और जहां से H गया, OH का H गया, वहां पे आपका क्या लग जाएगा, CH3. तो यू आर एबल टू सी द कंपाउंड. द मिडल कार्बन इज कंटेनिंग OCH3 ऑन बोथ द साइड्स, एंड माय डियर स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड एसिटल. हेमीएसिटल जब सिर्फ एक OCH3 लगा हो और जब 2 OCH3 लगे हुए हो तो वी कॉल इट एज अ एसिटल. नाउ डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. बहुत बार पूछा गया है ये रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए. एंड this all clear explanation is not given in your textbook, so I am showing it over here which you can copy directly in your notes. ये जो है explanation जहाँ से मैं आपको दे रही हूँ वो मेरे hand written notes है, so you can directly copy paste the same in your books and you can go for further learning it over here. And you have to remember that this mechanism, how we go for doing the additions, are very important. Now see, ये तो हमने देखा कि आपका जो एसीटोन है वो एसिटल बन गया, मतलब कि आपका जो कीटोन है वो अल्कोहल के एडिशन पे एक स्टेप पे देता है हेमीएसिटल और दूसरे पे देता है एसिटल, ठीक है. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एल्डिहाइड, अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो रिएक्शन कैसे होगा. सी, एल्डिहाइड RCHO प्लस R-OH. नाउ यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म, आपका जो ROH का H है वो किसके साथ लगेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ लगेगा, और नीचे क्या लग जाएगा, OR- हेमीएसिटल. फिर से हम इसको हेमीएसिटल कहेंगे, ठीक है. OR- का लगना दैट इज हेमीएसिटल. फिर से एक बार लेंगे हम अल्कोहल, और यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल का OH और आपके OH का, हेमीएसिटल का OH का H जो है वो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया, मतलब R- सीधा लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ. इट इज कॉल्ड एसिटल. डियर स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड JAM dialkoxy compound. It is also called JAM dialkoxy compound. Dear student, all these reactions, let me tell you, the CBSE has revised syllabus over here in which the running chapter, the current chapter which we are doing is having no topics eliminated. What does this mean? ये चैप्टर पूरे का पूरा ले रहे हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है. सो जितने भी रिएक्शंस करवा रही हूँ वो सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको लिखने भी है और करने भी है. यू हैव टू प्रिपेयर दिस ऑल. हेमीएसिटल, एसिटल, ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का ज्यादा वेटेज भी रहता है. दे आर आस्किंग मोर फ्रॉम दिस चैप्टर. सो प्लीज ट्राई टू understand the importance of the chapter and note down all the important things which I am dealing in this chapter with you. So मैंने यहाँ पर आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दिया हेमीएसिटल का और एसिटल का, with ketone also and with aldehyde also. Next to this we are going to see that what happens when we treat it with ethylene glycol. जब हम इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इसको ट्रीट करने वाले हैं, किसको, कीटोन को, दैट इज RC++OR. इसको जब हम ट्रीट करने वाले हैं किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो पर्टिकुलर क्या फॉर्म होने वाला है. जहां जैसे कि यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो रहा है, एसिटाल. कीटोन इज जनरली कन्वर्टेड इनटू एसिटाल एंड
हेमीएसिटाल, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, लेट अस सी RC डबल बॉन्ड O, सी कार्बन के ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने माइनस लिखा हुआ है। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या हो रहा है, ये आपकी बुक में भी नहीं बताया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, दैट CH2OH CH2OH, एक CH2OH का OH दूसरे वाले के H के साथ निकल के वाटर मॉलिक्यूल बन गया और क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब एक बचा आपका CH2 और एक आपका बचा O। डियर स्टूडेंट, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपका CH2 जो है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ लगेगा और नीचे लग जाएगा आपका OCH2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बिल्कुल भी नहीं है, इट इज वेरी इजी, और ये बनाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केटल, जैसे हम उसको एसिटल बोलते हैं इसको कीटल बुलाएंगे। ओके, इथिलीन ग्लाइकॉल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, और ये रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एडिशन ऑफ एमोनिया, एमोनिया NH3 होता है, तो हमने क्या किया, एक H को निकाल के Z लगा दिया, ठीक है, Z लगा दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। ओके, एंड इट्स डेरिवेटिव, एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब कि आपका NH3 में से एक H निकाल के कुछ भी लगा दो तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया। कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा आपके एमोनिया के साथ। एमोनिया पे चार्जेस लिख दिए हुए हैं मैंने कि N के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा जो कैरी कर रहा है H को एंड Z को, जबकि साइड पे जो H है वो कैसा है, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव H किसके साथ लगेगा, कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ लगेगा। बाकी क्या बचा, NHZ, देखो नीचे लिखा हुआ है NHZ। नाउ व्हाट आई हैव शोन, OH ऑफ योर that particular carbon attach and H from your NHZ, वो water molecule बन के निकल गया और आपको क्या मिल रहा है, C double bond NZ, C double bond NZ plus water. So this is your compound formation. Next to this, reduction reaction. So पहले reactions हमने देख लिए that how the reactions are forming. Second reactions we are watching with the reduction reaction. So aldehyde को जब भी आप, ये हमें पहले से पता है कि जब भी रिडक्शन करते हैं aldehyde का तो हमें क्या मिलता है, 1 अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। हमने देखा था प्राइमरी अल्कोहल में से हमें क्या मिलता था, aldehyde मिलता था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम अलग अलग चीज़ों के साथ इसका रिडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, वी कैन यूज NaBH4 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ऑल्सो वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, दिस ऑल आर दी रिड्यूसिंग एजेंट। हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन वॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल में से एल्डिहाइड बनाया था और सेकेंडरी अल्कोहल में से कीटोन बनाया था, ये उसका रिवर्स रिएक्शन है विच इज कॉल्ड रिडक्शन टू दी अल्कोहल्स। So these are the important reactions which you can learn and you can write down also. सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हम ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है उसको हम अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, साथ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू हाइड्रोकार्बन्स। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओवर हियर दैट इज रिएक्शन टू दी हाइड्रोकार्बन, इसको हम रिएक्शन करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, इन दिस देयर आर 2 पर्टिकुलर रिएक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू हैव टू नोट डाउन। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्लेमेंजन रिडक्शन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 पर्टिकुलर, और एग्जाम में वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन ज्यादा बार पूछा गया है, क्लेमेंजन भी पूछा गया है। सो वी आर गोइंग टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ बोथ। सो प्लीज डियर स्टूडेंट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लास्ट पर्टिकुलर 2 reactions which we are going to do in this video. Next we'll continue on the next video. So क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं 2 moles of H2 in the presence of zinc amalgam, ZnHg, that is called zinc amalgam, and in the presence of HCl. Now dear student, मैंने H2 को 2 बार लिखा है, नीचे देखिए H2 एक बार क्या होगा, H2O को लेकर चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब दूसरा H2 जो बचा वो क्या करेगा, आपके जो जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन निकल गया वहां पे जाके लग जाएंगे दोनों हाइड्रोजन, सो इट इज कन्वर्टेड टू दी हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंजन, जब आप यूज करते हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, ZnHg। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन,
यू आर यूजिंग हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन मतलब NH2 NH2। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, NH2 NH2, एक जो NH2 है उसका H2 ऑक्सीजन को ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2 बचा, वो लग गया आपके साथ, वो आपका इंटरमीडिएट हुआ। फर्दर जब आप इसको ट्रीट करेंगे विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यह दिख नहीं रहा है, इट इज हाइडेड ओवर हियर, you have to write CH2 plus N2. What you have to write? CH2 plus N2. That is your final product. So dear students, today we have done with two particular type of the chemical reactions over here, including their initial mechanism, how do they react. In our next video, we will be further continuing with the chemical reactions, and we will be starting with the oxidation. So I hope you understand the topics, and please take it very seriously that this chapter is very important, and please note down all the topics in your book.